Now in the IT BSEC we are having two line item. अब just press F5. Your work area final is free, is blank. Okay. In the WBKPF we are having data for this 10,000 document number. Now press F5. WA, just double click on this WA banner. So your accounting data here is 10,000. WA final banner is blank. Now again press F5. It will transfer the data from this variable to this variable. Okay, now you are having the data of this 10,000 in the WA final. So again, BOKRS is 330, 3320, but your WA final it is blank. So we are just transferring the data from structure BKPF to structure final. Now press F5, F5, F5. So we are having the data in this WA final. Now you can check the data. Okay, but we don't have data for Booji and DMBTR. Now we can transfer the data from PSEC. Just press F5. So in the IT BSEC, common fields is BUKRS, Banner and GZHR. So based on these three fields, I am fetching the data from BSEC. Now again press F5. Okay, your condition is correct because size of RC is 0. Now in the Booji, I am having one line item. In the DMBTR, you can check this value. And your WA final Booji is blank, 0, 0. Now again press F5. It is 1. So here we are transferring the data from BSEC to final structure. Now your IT final is blank. We are not having any entry in this IT final. Now I will transfer the data from WA final to IT final. Again press F5. So now in the IT final we are having this single entry for line item 1. Okay. Now it will just press F5 again. So your loop will work because in the IT BSEC we are having two line item. Okay. Again press F5. F5. So in the IT final now I am having two line item 1 and 2. तो जितनी लाइन आइटम आपकी होगी आईटी बी सेग में उतने टाइम आपका लूप चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है साइन टेबिक्स। साइन टेबिक्स आप देखो, साइन सबारसी मैंने बताया था, साइन सबारसी अगर 0 होता है तो वो सक्सेस के लिए होता है, साइन सबारसी 4 होता है उसके लिए 4 होता है, 4 होता है फेलियर के लिए, 0 होता है सक्सेस के लिए। अगर आपका आपका जो कोड है वो सही चल रहा है, डेटा है उसमें, देन इट इज साइन सबारसी 0। अगर सपोज आपकी कहीं कंडीशन फेल हो रही है उसका मतलब साइन सबारसी 4 हो जाएगा। अब साइन टेबिक्स क्या है? साइन टेबिक्स, साइन टेबिक्स आपको ये बताता है number of row in internal table. It will count the row in internal table. Will count the row of internal table. ठीक है, सपोज आपके पास दो एंट्री है आपकी बी सेग में, तो लूप लूप कितने टाइम्स चला? 2 टाइम्स। तो आपकी साइन टेबिक्स की वैल्यू अभी क्या है? 2। ठीक है, जब पहली बार लूप चला साइन टेबिक्स विल बी 1, and second time scientific will be 2, then third time scientific will be 3। scientific क्या होता है? बेसिकली सिस्टम वेरिएबल होता है, सिस्टम वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय द एसएपी टू काउंट द रो ऑफ इंटरनल टेबल। तो ये काउंट करेगा कि कितनी इंटरनल टेबल में हमारी रो है।
तो IT BSEC में कितनी है, 2 है, तो वो टेबिक्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। अब अगर हम F5 प्रेस करेंगे ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 लाइन आइटम थी, तो लूप 2 टाइम्स वर्क करेगा। ठीक है, अब ये मेन लूप पर आ गया, देन अगेन प्रेस F5। IT BKPF में एक ही एंट्री है, तो लूप दोबारा से यहाँ पे अब देखो साइड टेबिक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि मेन लूप पे हमारी जो एंट्री है हमारे पास BKPF में वो सिंगल एंट्री है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे साइड टेबिक्स 1 है, अब हम F5 प्रेस करेंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा F5। ठीक है, तो आपके दोनों लूप कंप्लीट हो गए इसमें, आइटम का और हेडर का। अब मेरी IT फाइनल में डेटा आ गया 2 लाइन आइटम का। अब मैं इसको करती हूँ डिस्प्ले मोड में। मैंने फील्ड कैटलॉग बताया था आपको कि कैसे क्रिएट होता है। अगर हम F5 क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, वर्क एरिया का डेटा पहले इसने फील्ड नेम पास की, फील्ड नेम पास हुआ यहाँ पे BUQRS फील्ड, ये BUQRS फील्ड पास हो जाएगी ITF कैट में। मतलब एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम जस्ट। अभी ITF कैट ब्लैंक है। अब हम F5 करेंगे तो एक एक एंट्री क्रिएट होगी, उसमें फील्ड नेम ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी आपका कंपनी कोड ऐड हो गया, देन वी विल ऐड बैनर। तो आप F5 करके चेक भी कर सकते हो, your line entry will be increased now. Okay, so just put your breakpoint here and press F8, so it will go to this breakpoint. Now in the ITF-CAT I am having 7 fields, and in the IT final I am having 2 entries. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F8 कर देंगे, रिपोर्ट पे आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइन आइटम। ठीक है, तो ये हो गया, हमने हेडर से कौन कौन सी फील्ड ली हैं, कंपनी कोड, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डेट, ये हो गई हमारी BKPF से। और लाइन आइटम और अमाउंट ये दोनों मैंने लिए हैं BSEC से, मतलब लाइन आइटम टेबल से। तो लाइन आइटम वाइज कैसे रिपोर्ट बनती है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि हम कैसे BKPF का डेटा, पहले BK हमने क्या किया। अब मैं थोड़ा डिबगर नहीं यूज करती हूँ, ब्रेक पॉइंट हटा देती हूँ। ठीक है, ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस रिपोर्ट। हमने अपना वेरिएंट सेलेक्ट किया, टेस्ट 11, देन एग्जीक्यूट। यहाँ पे 2 लाइन आइटम आ गई। अब हमारा ये प्रोसेस क्या था, हमने क्या किया, 10,000 मैंने पास किया, डॉक्यूमेंट नंबर 10,000 पास किया, तो हमने इनपुट लिया पहले। इनपुट से मैंने 10,000 पास कर दिया, कंपनी ने कोड पास कर दिया। उससे पहले जो हमने कोडिंग की अभी, उसमें क्या हुआ, पहले मैंने BKPF से डेटा फेच किया बेस्ड ऑन दिस 10,000 डॉक्यूमेंट नंबर, बेस्ड ऑन दिस इनपुट पैरामीटर। ठीक है, तो उससे हमारी लाइन आइटम आ गई 1 लाइन आइटम इन दिस BKPF। ओके, देन हमने क्या किया, BKPF BSEC से डेटा फेच किया, BSEC से डेटा फेच किया बेस्ड ऑन दी BKPF यूजिंग दी 4 all entries कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब BSEC में कितनी लाइन आइटम है, 2। तो हमने जो ALV अब डिस्प्ले कराई है वो लाइन आइटम की रिपोर्ट, लाइन आइटम वाइज कराई है, जिसमें हमने लाइन आइटम ऐड किया एंड देन नेक्स्ट DMBTR इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे 2 लाइन आइटम दिख गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कि आप कैसे 2 टेबल का डेटा, मतलब पहले फर्स्ट हेडर टेबल से आप डेटा फेच कर रहे हो, देन इंटरनेट आइटम टेबल से फेच कर रहे हो, तो कैसे हम हेडर आइटम का डेटा हेडर्स के बेस पे फेच करते हैं, देन हम लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ये आज प्रोसेस क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो 0 0 आ रहा है, ठीक है, इस 0 0 को बोलते हैं हम लीडिंग जीरोस। क्योंकि अभी क्या होता है, 10,000 अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है लीडिंग जीरोस, क्योंकि क्या होता है, अब हम इंटरनल टेबल में हमने डेटा फेच किया BKPF से, तो SAP में क्या होता है, इंटरनल फॉर्मेट होता है। तो इंटरनल फॉर्मेट में इसने क्या किया, इसने लीडिंग जीरोस एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब एक्स्ट्रा ऐड किस अकॉर्डिंग कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम बैक जाएंगे, ऐसी 11 पर जाएंगे। ठीक है, अभी बैनर का देखो करेक्टर कितना है, 10 है।
तो इसमें क्या होता है, सपोज आपका 10,000 कितने का आ रहा है, 5 डिजिट का, तो इसमें 5 लीडिंग जीरोस एक्स्ट्रा ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका रिपोर्ट में ऐड हो रही है, बट आपकी यहाँ से जब आप ऐसी 16 से फैच कर रहे हो उससे नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें इंटरनल फॉर्मेट आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बट जब हम कोड से डेटा फैच करें, जब हम इंटरनल टेबल्स में डेटा लेकर आ रहे हैं, तो आपका इंटरनल फॉर्मेट में जा रहा है, वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर इंटरनल फॉर्मेट में जा रहा है, आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई इंटरनल फॉर्मेट में, और लीडिंग जीरोस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। लीडिंग जीरोस ऐड हो गई, ठीक है, और ऐड किस बेस पे हो रही है, उसका साइज के बेस पे, उस फील्ड का क्या साइज है। मैंने बताया था ना आपको, डेटा टाइप हम मेंटेन करते हैं किसी डेटा एलिमेंट में, आप डोमेन में जाओगे तो डेटा एलिमेंट डेटा टाइप मेंटेन होता है, उस डेटा टाइप में मिनिमम लेंथ होती है, देन मैक्सिमम लेंथ होती है, ठीक है। अभी होता है देखो अल्फा, अल्फा कन्वर्जन रूटीन होता है। कन्वर्जन ये कन्वर्जन रूटीन क्या करता है, इसमें दो एफएम होते हैं, कन्वर्जन एग्जिट अल्फा इनपुट, कन्वर्जन एग्जिट अल्फा आउटपुट। आपको ये एफएम बताते हैं आज कि दो एफएम होते हैं हमारे पास, फंक्शन मॉड्यूल, एक एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और इनपुट में क्या होता है कि सपोज आपने 10 नंबर पास किया, तो आउटपुट आप, ये आपका इनपुट है, क्योंकि एफएम में फंक्शन मॉड्यूल में क्या होता है, आप इनपुट देते हो, आउटपुट आपका वो रिटर्न करता है। तो हमने इनपुट दिया उसको 10, नाउ वी विल गेट द आउटपुट विद द लीडिंग जीरोस, ठीक है। जो भी उस फील्ड का आपका, जो आपने डेटा पास किया, वो उसकी लेंथ चेक करेगा इंटरनली, उसकी कितनी लेंथ है, देन इट विल ऐड द लीडिंग जीरोस। सो इंटरनल ये हो गया आपका कन्वर्जन एग्जिट अल्फा इनपुट। अब अगर आउटपुट वाले में देखते हैं, तो हमने इनपुट पास किया 10, सपोज ये आपका इनपुट है, इसको कन्वर्ट कर देता है विदाउट लीडिंग जीरोस, कि अपोजिट होता है मतलब। अब मैं आपको एफ एम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, एफ एम को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। एफ एम का टी कोड होता है SE37, एफ एम टी कोड, एफ एम फंक्शन मॉड्यूल SE37, इसको हम कैसे चेक करेंगे, नाउ वी विल रन दिस ट्रांजेक्शन SE37 इनपुट F8, मैंने यहाँ पे 10 पास किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखिए लीडिंग जीरोस आ गई, ठीक है। अभी इसमें हम जस्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम अपने डिजिट दिखा रहा है, और लीडिंग जीरोस इसने ऐड कर दी। ऐसे ही इसमें हो रहा है इंटरनली, ठीक है। ये लीडिंग जीरोस उसने करेक्टर चेक किया और उसने ऐड कर दी। तो ये आपका कौन सा चल रहा है फॉर्मेट, कन्वर्जन एग्जिट अल्फा अल्फा इनपुट, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम इसको कन्वर्ट जीरो रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब रिमूव करते हैं हम, हमने लूप चलाया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें आपकी वैल्यू आ गई, मैं डिबगिंग में दिखा दूंगी, इसमें वैल्यू आएगी आपकी 0 0 0 आपको क्या आएगी। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन मॉड्यूल कॉल करते हैं, ठीक है। हमें जीरो को रिमूव करना है, तो कौन सा यूज करेंगे, आउटपुट, ठीक है। जीरो रिमूव करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, आउटपुट। पैटर्न पे कॉल करके हम अपना एफ कॉल कर लेते हैं, फंक्शन मॉड्यूल, एंटर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इनपुट पास करना है, वो मेरे को आउटपुट दे देगा। पहले तो इस कोड को अनकमेंट कर देते हैं। नाउ वी विल पास द वैल्यू हेयर, यू कैन पास दिस वैल्यू वर्क एरिया। हम हार्ड कोडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपना वर्क एरिया पास करेंगे, जो भी इसमें वैल्यू आती रहेंगी वो पास होती रहेगी एफ में, ठीक है। सेम हम इसमें पास करेंगे, मतलब मैं एक ही वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं आपको डिबगिंग में ब्रेक उसमें दिखाती हूँ, डिबगिंग में ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं F8, सेम टेस्ट केस लेते हैं, टेक्स्ट 11 एग्जीक्यूट, BKPF में एंट्री आई 10,000, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 0 0 एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जब हमने सिलेक्ट क्वेरी लिखी है ना, तो इंटरनल फॉर्मेट में ही आती है वो। अब इंटरनल फॉर्मेट में उसने लीडिंग जीरोस एक्स्ट्रा लगा दी। अब नाउ वी विल प्रेस F5, ठीक है। अब देखो बैनर में कौन सी वैल्यू है, लीडिंग जीरोस की। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई एफ है,
तो एफएम को अगर हमें डीबग करना है तो हम F5 प्रेस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि F5 क्या करता है, लाइन बाय लाइन डीबग कोड को डीबग करता है, ठीक है। एंड if you are selecting any function module, if you are like debugging your function module, then you don't want to check the inside of this code, so you can press F6, ठीक है। अगर लाइक आप F5 प्रेस करोगे तो उसने क्या किया, फंक्शन मॉड्यूल के अभी अंदर है, हम उसका कोड डिबग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये स्किप करना है, अगर आपको वापस से बाहर जाना है, देन यू कैन प्रेस F7। तो बता देती हूँ, if you want to debug the code of FM function module, then press F5. That will debug the code line by line। मैंने क्या लिखा है इसमें अभी, कि अगर आपको एफएम के अंदर जो कोड होता है, अगर आपको वो भी डिबग करना है तो आप F5 प्रेस करोगे, वो लाइन बाय लाइन आपका कोड डिबग करेगा। अगर आपको स्किप करना है, इफ यू वांट टू स्किप द कोड ऑफ एफएम, if you want to skip the code of FM, then you can press F6। press F6। तो ये आपका थोड़ा डिबगिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैसे कोड को डिबग कर रहे हो। तो ये हर किसी में काम आता है, लाइक आप तो फंक्शनल वे में देख रहे हो, किसी भी रिपोर्ट को डिबग कर रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम किस कोड को कैसे डिबग करें। तो अगर आप FM के अभी इसमें मैंने बताया था कि अगर आप F5 करोगे तो वो कोड के इसमें FM के कोड को डिबग करेगा। अगर आपको वो स्किप करना है, सपोज आपको कॉल फंक्शन यहाँ पे है, आपको उसके अंदर का कोड डिबग नहीं करना है, तो बेसिकली कोई हम अगर स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो हम उसका कोड स्किप कर देते हैं, वो डिबग नहीं करते। तो उसको स्किप करने के लिए आप कौन सा प्रेस करोगे, F6, ठीक है। अभी मैं वो भी बताऊंगी कि कैसे हो रहा था। अब ये देखो, बैनर की वैल्यू क्या हो गई, 10,000, क्योंकि इसने कन्वर्ट कर दिया। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो FM करता है, कन्वर्जन एग्जिट अल्फा आउटपुट, ये जीरो को रिमूव करता है, ठीक है। इट विल एड द जीरो, एड लीडिंग जीरोस, और ये क्या करता है, रिमूव लीडिंग जीरोस, रिमूव लीडिंग जीरो, वो ऐड करेगा और वो रिमूव करेगा। अब हम एक्टिवेट कर देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपकी लीडिंग जीरोस रिमूव हो गई। तो ये अभी मैंने ये प्रोसेस बता दिया कि आपकी लीडिंग जीरोस कैसे डिस्प्ले हो रही है, कैसे रिमूव होगी, और कन्वर्जन एग्जिट अल्फा एंड इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से डीबग कर दिखा देती हूँ। अब मैं फंक्शन मॉड्यूल का कोड स्किप करूंगी, ठीक है। मैंने F5 किया। अभी यहाँ पे क्या है देखो, लीडिंग जीरोस, अब ये रिमूव हो जाएंगी। मैंने F6 प्रेस करूंगी, कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अंदर का कोड डीबग नहीं करेगा। मैंने क्या प्रेस किया, F6, ठीक है। अब हम FM के कोड पे नहीं गए। अब बैनर की वैल्यू क्या हो गई, 10,000, ठीक है। अब अगर मैं F5 प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, वो भी एक बार बता देती हूँ दोबारा। F5 F5 F5, अब दोबारा से हम F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्जन एग्जिट अल्फा आउटपुट के जो कोड अंदर है इसके FM के, उसको डीबग करेगा, उस पे चला गया, ठीक है। अब F5 करोगे, F5, ठीक है, फिर बाहर आएगा। तो आपको वो पार्ट अगर स्किप करना है, देन यू कैन प्रेस F6, ठीक है। अब आप बैनर की वैल्यू चेक करोगे तो लीडिंग जीरोस रिमूव हो गई, F8, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि हम कैसे हेडर की रिपोर्ट, लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, लीडिंग जीरोस को रिमूव कर रहे हैं, और इन दोनों FM का क्या यूज है। वो क्लियर हो गया कि अभी और इसमें कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत है ऐसे। सपोज अगर आपको यहाँ पे
हाँ, अगर सपोज ये कंडीशन चेक कर रहे हैं तो ही हमारा डेटा पास हो, तो हम यहाँ पे साइन सब आरसी की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। इफ साइन सब आरसी इज 0, then it will append the data. एंड यहाँ पे हमने कंडीशन चेक कर ली है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो ही हमारा डेटा पास हो, तो ही आगे का कोड रन हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम जैसे कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक इफ डब्ल्यू ए फाइनल बैनर इज नॉट इनिशियल। तो ये होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, कि हम कैसे कोड को, कैसे अच्छा कोड लिख रहे हैं कि जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। तो हमने क्या किया, अगर सपोज बैनर आपका खाली है, ठीक है, आपके इसमें बैनर में मतलब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर कोई वैल्यू नहीं है हमारी, तो ये कोड रन ना हो, मैंने इस कोड के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि अगर बैनर इज नॉट इनिशियल मीन्स इज नॉट ब्लैंक, तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ही आपका ये कोड रन होगा, अदरवाइज इट विल नॉट रन। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि अगर बैनर आपका ब्लैंक चला गया और इसमें वैल्यू हम फंक्शन ये कन्वर्जन एग्जिट अल्फा आउटपुट को यूज कर रहे हैं, तो इसमें डंप आने लगता है क्योंकि उसको वैल्यू मिलती नहीं है। उसमें अगर वैल्यू ब्लैंक जा रही है तो वो इशू करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड की है, इफ डब्ल्यू ए बैनर इज नॉट ब्लैंक, नाउ एग्जीक्यूट and pass your variant, select your variant here, then execute, then press F5, F5. Now we are having the data in this WA final banner, F5. Okay. So this is the process. लूपिंग तो हो गई अब इसमें, अब हम और टेबल्स भी इसे मर्ज कर सकते हैं। लाइक अभी तो हमने दो टेबल यूज किए, बीकेपीएफ और बीसेक, अभी हम 3 और 4 टेबल कैसे यूज करेंगे। और अभी मैंने जैसे फोरोल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट तो बता दिया कैसे होता है फोरोल एंट्रीज। अब हम पढ़ेंगे जॉइंस कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताती हूँ कि लाइक जॉइंस कैसे यूज होते हैं, इनर जॉइन, देन रीडी स्टेटमेंट, टेबल को शॉर्टिंग कैसे करते हैं, शॉर्टिंग ऑफ इंटरनल टेबल, नेक्स्ट इसमें क्लास में कन्वर्ट ये इसको रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। F8। ठीक है, अब यहाँ पे बटन्स कैसे ऐड होंगे कस्टम, वो सब देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे चेक बॉक्सेस कैसे ऐड होते हैं। सपोज आपको एक फील्ड ऐड करनी है चेक बॉक्स के लिए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके उसका डेटा आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी है उस पर, तो वो कैसे करेंगे वो कवर कर लेते हैं अभी पार्ट। तभी लूपिंग हो गई, मतलब यूज हो गई है कि आप कैसे लूप यूज कर रहे हो, लूप स्टेटमेंट। रेडी स्टेटमेंट पेंडिंग है, रेडी स्टेटमेंट हम देख लेंगे। डू यू हैव एनी डाउट?